बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अभी तक के सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड में के एग्जाम के डेट जहाँ पे पेंडिंग थे, एग्जाम सस्पेंड था, वहाँ पे अभी एग्जाम का डेट नहीं बताया गया है। बट हमारा ये वेस्ट बंगाल बोर्ड है, अभी एग्जाम का डेट एक्चुअली डेट नहीं बताया है, बट एग्जाम कब होगा इसके बारे में बताया। एंड वो खुद जो है हमारी सीएम जो है ममता बनर्जी ने बताया है, जो कि क्लास 10 का एमपी एग्जाम होगा, मतलब माध्यमिक परीक्षा, और क्लास 12 का एचएस हायर सेकेंडरी का 2021 बोर्ड्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसका न्यूज जो अभी आया है मैं वो बताऊंगा, और लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा, लाइव वीडियो ऑफ सीएम ममता बनर्जी जो वो अनाउंस कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। तो उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो बंगाली लैंग्वेज में है, वो बांग्ला में ही बोलेगी, और हिंदी में तो वो बोलती नहीं है ज़्यादा, और इंग्लिश में नहीं बोलेगी, तो बांग्ला में ही वो बोल रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो, बांग्ला में वो बोल रही है। जिसको समझ में आ रहा है वो समझो, नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं हिंदी में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ जाएंगे और हिंदी वाले भी हिंदी समझ जाएंगे, और बंगाली वाले तो डायरेक्ट बांग्ला उनका जो लेक्चर होगा वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, ये बोलने की बात नहीं है। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और सभी को ये न्यूज़ पता चल पाए उसके लिए शेयर कर दो और लाइक कर दो, ताकि आपके लिए ये जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मोटिवेशन भी मिले। तो चलो, सबसे पहले आप उनके वीडियो को देख लो, उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है मैं वो बता दूंगा। चलो, মাধ্যমিক পরীক্ষাটা আমরা পরে নেব সেকেন্ড উইক অফ আগস্ট। ডেট বাদ বাকিগুলো কবে কি পরীক্ষা হবে সেগুলো বলে দেবে উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আর জুলাইয়ের লাস্ট উইকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা আমরা করব। কিন্তু কোভিডের দূরত্ব বিধি মেনে যার যার নিজের পাড়ার স্কুলে হোম সিট পড়বে, এগুলো আমরা ভেবেছি। তার কারণ ছাত্রছাত্রীরা যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলে সিট পড়লে তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। বাড়ির সামনাসামনি হলো, তারা অনেক দূর বাসে উঠে যেতে হয় না, এবং কি করে কম কম করে নেওয়া যায়, আরো সাবজেক্টগুলোকে আরো কমিয়ে ফেলা যায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দুটো ক্ষেত্রেই। তাই তো আলাপন যে ধরুন 3 ঘন্টায় পরীক্ষা হয়, অত্যাবশ্যক যেটা 3 ঘন্টায় ধরুন সাপোজ 10টা কোয়েশ্চেন থাকলো, আমরা 3 ঘন্টার পরীক্ষাটা 1.5 ঘন্টা করে দেবো। এবং সেক্ষেত্রে যা কোয়েশ্চেন পেপার আছে তা হয়ে গেছে অলরেডি, চেঞ্জ না করে যখন 3 ঘন্টার কোয়েশ্চেন ছিল তাকে যদি 10টা উত্তর দিতে হতো, তাহলে এখানে অ্যাডভান্টেজ সে পাবে 10টার জায়গায় 5টা উত্তর দিতে হবে, 1.5 ঘন্টায় পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ তার কাছেও অনেক অপশন পেয়ে গেল। এইটা মধ্যশিক্ষা উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ, এটা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধে হবে, তাদের সুবিধের জন্যই। কারণ এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা চাই না তাদের মাথার উপরও কোনো বাজ ভেঙে পড়ুক বা তারা আরো বেশি চিন্তিত হোক, এটা আমরা চাই না। তারা খোলা মেলা মনে পরীক্ষাটা দিক, যার জন্য আমরা অল্পের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র ওই যেরকম ভাবে আমরা বললাম, মূল বিষয় বিজ্ঞান শাখা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জীববিদ্যা, বাণিজ্য শাখা, হিসাব শাস্ত্র, অর্থনৈতিক বাণিজ্য, এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন, যেখানে যেখানে যেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে রিঅ্যাডজাস্ট দেখে নেবেন। বাট আমি চাই অল্পের মধ্যে দিয়ে হোক। আর কলা বিভাগে যেমন ইতিহাস আছে, কলা বিভাগ, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা হবে যেগুলো বললাম। আর বাদ বাকিগুলো বিদ্যালয় পরীক্ষার ভিত্তিতে মার্কস দেওয়া হবে। এটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, স্কুল ডিপার্টমেন্ট তৈরি করবে ডিটেলস। তাহলে 16 দিনের বদলে পরীক্ষাটা 8 দিনেই কমপ্লিট করা যাবে, আর 3 ঘন্টার জায়গায় 1.5 ঘন্টা করে হয়ে যাবে। তাতে 10টা অপশন থাকলে আগে 10টা লিখতে হতো, সেটা 10টা না করে 5টা করবে। আমরাই প্রথম মনে হয় ভারতবর্ষে পরীক্ষার ডেট ডিক্লেয়ার করলাম, এবং আমি নিশ্চয়ই বলবো যে একটু স্যানিটাইজেশন মেনটেন করে, সোশ্যালি ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করে যাতে হয়। তাহলে কি হবে, একটা দিন এতগুলো পরীক্ষা তো হচ্ছে না অত্যাবশ্যে, সুতরাং সুবিধা হবে। আপনারা ভাগ করে 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 পরীক্ষা ক্লাসগুলো দিয়ে এগুলো নিজেরা করবেন, এগুলো একটু দেখে নেবেন। आई होप आपने उनका लगभग 3 मिनट का जो है लेक्चर
उन्होंने दिया था सभी उनका A to Z मैंने सुना दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, MP माध्यमिक क्लास 10 का एग्ज़ाम जो होगा 2nd वीक ऑफ अगस्त मंथ में होगा। देखो ये सब टेंटेटिव है, इसको अभी भी 100% नहीं लिया जा सकता। मान लो उस समय कोरोना और भी तेज हो गया, ठीक है, कोरोना और भी तेज हो गया, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम को फिर पोस्टपोन करना पड़ सकता है, पोस्टपोन्ड। ओके, और यहाँ पे HS का जो है क्लास 12 इनका क्या बताया गया है, तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि HS का एग्ज़ाम इस बार पहले होगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 10 का एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्लास 12 का एग्ज़ाम नेसेसरी है, इसे होना ही होगा, नेसेसरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो इसको होना है। और इसी का यही कारण है कि कोरोना जैसे अभी धीरे धीरे घट रहा है, जल्दी से क्लास 12 का एग्ज़ाम लेकर हटाना चाह रहा है। तो ये क्लास 10 का अगर अच्छा सिचुएशन रहा तो बाद में लिया जाएगा, अदरवाइज अगर अच्छा सिचुएशन नहीं रहा कोरोना का तो चेंज कर दिया जाएगा, मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए, और टाइम और मतलब एग्ज़ाम लेने का ना रहे तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्लास 12 का नेसेसरी है, होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि 10 का एग्ज़ाम 2nd वीक ऑफ अगस्त, 12 का एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल्स को मानकर एग्ज़ाम होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है आपका होम स्कूल, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी में होगा, जो कि ये बात पहले भी बताया गया है, तो ये बात पता होगा। थर्ड रूल जो कि ये जो थर्ड रूल, देखो ये तो आपको पता चल ही जाता, ये आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद जो मेन होने वाला है यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि 3 घंटे का एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा, टाइम कम कर दिया जाएगा। और उन्होंने एक बात और भी बोला था कि क्वेश्चन पेपर नॉट चेंज, मान लो क्वेश्चन पेपर अगर बन चुका है आपका तो विल नॉट चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस। सपोज डेट इंग्लिश में मान लो, जैसे उन्होंने अपने लेक्चर में बोला था कि सपोज डेट 10 क्वेश्चन अगर किसी पोर्शन में आता है तो वो 10 क्वेश्चन ही रहेगा, और अगर आपको 10 करने होते थे तो अब आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम तब तो 50 मार्क्स का हो जाएगा, बट ये नहीं है, एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का ही होगा। 100 मार्क्स, क्योंकि फ्यूचर के जहाँ भी आप मार्क्स बताओगे वहाँ पे आउट ऑफ 100 ही बताना पड़ता है कि कितना पाया आउट ऑफ 100, या परसेंटेज यहाँ से डायरेक्ट निकलता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम इतना ही होगा, और 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मीन्स आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएगा। लाइक जैसे इंग्लिश का ही मान लो, ठीक है, इंग्लिश का पैटर्न में क्या होता है, इंग्लिश का पैटर्न में 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, आपको कोई 2 करने होते हैं। अब क्या होगा, हो सकता है सिर्फ 1 करो, सिर्फ 1 कर दो, तो आपके लिए और भी तो आसान हो गया कि पहले कोई 2 करना था अब और 1 करना है, तो यहाँ पे आपका हो गया। और हो सकता है यही जो आपका 1 और 2 मिलाकर 12 नंबर का होता था ना इंग्लिश में, तो हो सकता है अकेला 12 मार्क्स का क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि मार्क्स तो 100 का ही अभी तक रहेगा ना, मार्क्स चेंज का तो कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स करना क्या होगा, तो डबल कर देना होगा ना। अगर आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन और मार्क्स यहाँ पे इस तरह से बिलोंग करता है मैथमेटिकली, डायरेक्टली पर क्वेश्चन कम हो रहा है तो उस जो भी लिमिटेड क्वेश्चन अब मिलेगा उसका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्क्स, तभी तो 100 होगा ओवरऑल। तो ये एक और चीज़ था, तो 1 2 हो गया। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट क्या बताया गया था, चौथा पॉइंट बताया गया था कि ओनली इम्पॉर्टेंट, ये जो मैंने बात बताया पैटर्न वगैरह का, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उसमें और डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ बता रहा हूँ, ओनली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का होगा। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ नाम भी बताया था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये होगा। देखो 2 लैंग्वेज तो होगा ही, ये मत सोचना कि लैंग्वेज की कम हो जाएगा। आपका बंगाली इंग्लिश है होगा, आपका हिंदी इंग्लिश है होगा, नेपाली इंग्लिश है होगा, इंग्लिश हिंदी है होगा, इंग्लिश बंगाली है
फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज होगा, तमिल है और उसके बाद इंग्लिश है तो होगा, क्योंकि ओवरऑल 5 सब्जेक्ट होता है तो ये 2 लैंग्वेज होगा। उसके बाद साइंस में PCM भी, तो इसका साइंस में तो सभी इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने इस चारों का नाम लिया था। उसके बाद कॉमर्स में अकाउंट्स हो गया आपका, बिजनेस स्टडी हो गया आपका, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और CLPA शायद नहीं बोली थी। तो उनके हाथ में एक लिस्ट था, देखना वीडियो में, तो वो लिस्ट बाद में PDF के फॉर्म में हम लोग को जब मिलेगा काउंसिल की तरफ से तो मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट अभी उन्होंने कुछ ऐसा लिस्ट नहीं दिया है, बस उन्होंने जस्ट लिस्ट पे पढ़ कर बताया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का होगा। और आपका आर्ट्स में जैसे हिस्ट्री बताया था उन्होंने, और ज्योग्राफी भी तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही। उसके बाद पोल साइंस भी बताया था, एंड EVS को नहीं बताया था, एडुकेशन सब्जेक्ट को उन्होंने नहीं बताया था। तो इसके लिए क्या है कि जो सब्जेक्ट आपके हैं अगर उसका एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसका मार्क्स आपको और सब्जेक्ट के बेसिस पे मिल जाएगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसा, ठीक है। तो उनका क्या नाम क्या था, मान लो जो एग्ज़ाम 16 डेज 20 डेज लगता है वो 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितना जल्दी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए अच्छा है, वो यही चाहती है। हाँ, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो है वो आपके अदर सब्जेक्ट के मार्क्स को देख के उसमें दे दिया जाएगा कि यार बंदा हिंदी में इतना पाया, इंग्लिश में इतना। जैसे HS 2020 को देख लो, उनका भी 2 एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो बाकी के 3 मार्क्स को देख के 2 एग्ज़ाम मार्क्स दे दिया गया था। उसके बाद फिजिक्स में इतना पाया, केमिस्ट्री में इतना पाया, मैथ में इतना पाया, बायोलॉजी ऑप्शनल था तो उसमें कितना पाया, तो ओवरऑल मान लो सब में 70-80 पा रहा है तो इसमें भी वो 65 या 70 मिल जाएगा उसको, ऐसे करके एवरेज मिल जाएगा। तो ये सब बात है। अब देखो जिसका ऑप्शनल है वो अलग बात है, बट जिसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मान लो कितनों का एडुकेशन इलेक्टिव होता है लेकिन इसका एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो बस हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस का मार्क्स देखकर उसको एडुकेशन में नंबर दे दिया जाएगा, एज लाइक दैट, सिंपल। तो जो भी उन्होंने बताया था तो यही 4 पॉइंट उन्होंने बताया था कि 1 कक्षा 10 का एग्ज़ाम सेकेंड वीक में होगा, अगस्त में होगा। HS का एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। सेकेंड, कोविड प्रोटोकॉल्स को मानकर होम स्कूल में ही होगा, ताकि आपको लॉकडाउन में आने जाने का दिक्कत ना हो, बस ट्रेन ये सब का झमेला ना हो, टाइमिंग का झमेला ना हो, जल्दी से पहुंच जाओ। और क्या है, और किसी के घर में अफेक्टेड पर्सन है तो पेरेंट्स अफेक्ट है तो हो सकता है वो अकेला ना जा पाए उतना दूर, तो बगल में स्कूल में अकेले भी एग्ज़ाम देने जा सकते हो। 3 आवर का एग्ज़ाम्स नहीं होगा, 1.5 हाफ आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और ये भी 100% अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है इसको भी चेंज कर दिया जाए, ठीक है। हो सकता है 2 घंटे का कर दिया जाए, क्योंकि 100% अभी आपका नोटिस नहीं आया है, तो ये भी आ जाएगा, डोंट वरी। और इस पे मैं तो एक वीडियो ही बनाऊंगा, ये टोटल चीज़ जो 3rd पॉइंट जो भी बताया उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आपका 4th ये रहेगा, ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे होगा। तो यही रहा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें मैं और भी चीज़ें को लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहे।